complementary and alternative therapies and believes in making a difference to people in need. She is a graduate in life sciences, a PG diploma in medical laboratory technology, MBA hospital and healthcare, a naturopath, and a registered acupuncture practitioner. She also holds a PhD by research in hospital administration and a diploma in holistic health sciences to her credit. Her interests include social impact, CSR initiatives with NGOs and special initiatives with International Human Rights Council as a permanent representative to the United Nations. A health and life transformation coach by choice, she is now aggressively spreading awareness about the disruptive technology in healthcare. Lifetime Genetics Program and Nutrigenomics is a certified nutrigenomic wellness consultant. She has helped people understand their future health trajectory through gene profiling, saving lakhs of medical and hospital bills. In 5 years, she aspires to touch 11,000 lives individually, providing them immense health benefits by decoding their genetic code. Please welcome Dr. Usha Nair today, Vice President Corporate Alliance with Velocity Genetics. Over to you, Dr. Usha Nair. Thank you so much, Geeta ji, for such a detailed introduction. And I would like to thank the board today for inviting me to enhance all your knowledge a little more on this new science that is really going to be, it's called as disruptive because that is actually going to enter into the mainstream healthcare system. And as Vice President with Velocity Genetics, I have taken that up as my onus. So the biggest success that I have received in the last 1 year is I have tied up this technology with Wokhad hospitals in Mumbai, and they are offering this technology for their patients and healthy people who especially come and do their preventive health checkups every single year. So I will come to it in the middle of my presentation, but brief about if you do a health checkup or if you have an insurance policy, that is, you are actually taking one step further into thinking that when I fall sick, then I will need it. The preventive health checkup will tell you, आज मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ. But this technology is something which will tell you, कल आप बीमार पड़ सकते हो या नहीं पड़ सकते हो. और अगर पड़ोगे, तो उसका हम बचाव अपने lifestyle diet से कैसे कर सकते हैं. That is the simple science of nutrigenomics. So I will share my slide now. Just one moment. Okay. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay, is it full screen? Yeah. Yes. Great, excellent. So friends, today we are going to understand and learn what is the correlation between human genetics and wellness, and what is the science of nutrigenomics. I'm Dr. Usha Nair. I'm from Mumbai. I am associated with Velocity Genetics for the last 4.5 years, and it has really helped me evolve into a real full-time DNA wellness coach. So what do you mean by discovering the amazing world of human genetics? आज ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, किस लिए डिस्कस कर रहे हैं? Basically, I will ask you a few questions. We are quite a small group here, so I would like, if you would like to answer anything, please go ahead and inform. मैं ये सवाल पूछती हूँ सभी से. ऐसे हम यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को डीएनए से अपनी सेहत का राज जानना चाहते हैं? Can I see a raise of hands? Yes. Wow. Everyone. अपनी बीमारी का रूट कॉज, माने हम कहते हैं ना सेहत का राज. आज मैं ये कहती हूँ कि आप बीमारी का राज क्या आप पहचान सकते हो, क्या आप जानना चाहोगे? How many of you? Oh, that is excellent. And अपने फ्यूचर हेल्थ लाइफ का अगर मैं आपको एक तरीका दिखाऊं जो
जैसे हम सभी गाड़ियों की बात करते हैं, हम सभी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, वेदर वी ड्राइव और वी डोंट ड्राइव, वैसे अगर मैं आपको आपके हाथ में आपकी लाइफ का, सेहत का एक जीपीएस दे पाऊं, तो विल यू बी इंटरेस्टेड? Surely. Definitely. So today we are going to talk about एक precise diet and fitness plan. Precise माने बिल्कुल सटीक, बिल्कुल customized, and इसकी खासियत ये है, this is about जो आपको सूट कर सके. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, दो जुड़वा बच्चों का भी अलग होता है, आइरिस अलग होते हैं, सिमिलरली ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको बिल्कुल आपके लिए, it will be different from your children, it will be different from your parents, it will be different from your siblings, it is only for you. So how many of you would like to know about it? Thank you. So become a part of the genetic revolution in India, because Velocity in the last 4 years is 5 years is really taking this industry by storm. वैसे अगर हम देखा जाए, ह्यूमन लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. ओके, सो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ये कहता है पॉपुलेशन 780 करोड़, बर्थ रेट 13 करोड़, डेथ रेट 5 करोड़. इंडिया स्टैटिस्टिक्स इज अगेन फैंटास्टिक, पॉपुलेशन 139 करोड़. बहुत जगह पे आप देखोगे इट स्टिल शोज एज 138, बट वी आर मोर देन 139.1 करोड़ टुडे. बर्थ रेट 2.7, डेथ रेट 98 lakhs. बट ये सब के बावजूद modern healthcare system has also progressed a big way. That's why we are talking about genetics and health today. But हमें ये सोचना चाहिए कि the number of diseases जो बड़े हैं, जो आए हैं, has that reduced to any extent? Well, average lifespan as per Ayurveda, through healthy living, हम और आप minimum 120 years तक जीना चाहिए. Because we all think we are living healthy. So what is the world statistics? World statistics ये कहता है कि globally men का average age is just about 70.8. For women it is 75.6. And if you take an average of men and women, the world statistics says 73.2 is the average lifespan of human beings. If we look at India, India ranks on the 135th, जहां men का average life is only not even 70, 69.16. For women, it is not even 72, 71.8. And on an average, any human being in India would live a lifespan of 70.42 years. इसमें there is a difference of at least 50 years. So just imagine, हम सोचते हैं हम healthy रहते हैं. As per Ayurveda, human body can live up to 120 years. But ऐसे कितने लोग हैं who we know have even lived up to 100 years? Very few, very minimum. तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? Of course, like I mentioned earlier, there is a rise in the number of diseases. And today, अगर हम globally देखें तो top 10 causes of diseases for death. First topmost is heart diseases. Second is a stroke. Third is a chronic obstructive pulmonary disease, जो कोरोना में भी हो रहा था. कोरोना patients used to end up with pulmonary distress. Lower respiratory tract infections. Yes, we talk about brain health, that is Alzheimer's disease and other dementias. We talk again about majorly trachea, bronchus, and lung cancers. Cancer is greatly on the rise. Diabetes mellitus. Of course, there is other reasons like road injury, road accidents. That is also amongst the eighth major killer globally. We talk about malnutrition, but there is also the incidence of diarrheal diseases. And the 10th in the line is tuberculosis. But अगर आप ये 10 top 10 में देखें, तो of course, there are more than 3 parameters जो are related to nutritional conditions. So अगर आप nutrition सुधारो, तो आप definitely अपने आप को उस disease से बचा सकते हैं. So let us think about ourselves. I will go back and I will ask each one of you again to take a look at the 10 causes of diseases. हम अपने आप के बारे में सोचते हैं. So if you think इसमें से more than 5 parameters, especially with corona, are relating to you. Okay, आपको ऐसा लगता है कि इसमें से more than 5 चीजें हैं जो मेरी लाइफ में हैं,
ठीक है, so let us read it and then raise your hands frankly, क्योंकि today we are taking audit of our health. It is not about my friend, my business partner, my owner. It is about मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So poor nutrition and dietary habits. How many of us feel I have the best of nutrition every day? Wow, Ashu is very lucky. How many of us feel there is lack of clean drinking water? Anywhere and everywhere. It's not about our homes. Poor air and environmental quality. Can we control it? Yes, we all face that. Delhi, oh my God, don't mention about it, right? Then there is lack of adequate sleep. Do you think all of us should sleep at least 7 to 8 hours? तो ऐसे हम कितने लोग हैं जो definitely हर रोज एक 8 घंटे की मस्त नींद निकालते हैं? बताओ, सच सच बताना. कोई नहीं. So even though we are awake, okay, don't sleep even for 7 hours. How about physical activity? हम ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज कुछ ना कुछ simple walking ले लो, simple walking करते हैं. Walking is the best exercise. हाँ शैलेंद्र सर, हर रोज तो नहीं हो पाता. डेली होता है मैम, मैं डेली करता हूँ. चलो बढ़िया. आशु is the healthiest, okay? So he's going to help all of you stay healthy. Then again, इन सभी चीजों के वजह से how many of us are facing 2 किलो भी अगर ज्यादा है ना और वो आपके दिमाग में है तो सच सच बताना. Overweight and obesity, it may not be obesity. कहीं थोड़ा सा पेट बड़ा है. Yes, definitely. Then of course, how many of us, I don't talk about mental health in the bigger terms, किसको stress नहीं है? स्ट्रेस नहीं तो है. है. सभी को सबको है. Then again, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी टोबैको या अल्कोहल कभी नहीं छुआ लाइफ में? गीता तो हाथ उठाएगी. हाँ, मैंने भी छुआ. Congratulations, we'll include you in the club of party very soon. Then again, how many of us, especially after corona, this is such a scary word, virus, bacteria, how many of us think कि infections मुझे नहीं होंगे? I am very good, I am very happy. How many of us think मुझे infections, virus, bacteria नहीं हो सकते? कौन बीमार नहीं पड़ा आज तक? बताओ. सभी पढ़े. कभी पढ़े, कभी ना कभी, कुछ नहीं तो जुकाम हो ही जाता है. And when all this comes, we are forced to use some kind of drugs, some kind of medicine, some kind of chemicals. Yes, we agree. So we trying to be healthiest possible, but फिर भी ये सारे causes, which are the 10 top causes of diseases and ill health, these are all part of our life, and we all need to fight it, right? So हमारा ये mindset होता है. अभी एक सिंपल सवाल पूछती हूँ. How many of us feel I am healthy? I also feel. कुछ तो दवाई लेते हो? कुछ तो कमी है. हाँ, कुछ तो कमी है. नहीं, हम 80% लोग ये सोचते हैं कि I am healthy as compared to the 20% who are sick, who are maybe having medications every day, maybe undergoing treatments in hospitals or under a doctor, having some kind of an issue, जहां वो ये सोचते हैं कि I hope to get well soon someday, and they are making real sincere and disciplined efforts to get back to health. और आपके मेरे जैसे 80% लोग, we call them the happy-go-lucky industry. We will go out, when lockdown opened, 2 things opened. Who will share the top 2 things that opened when lockdown opened? कौन बताएगा? फूड इंडस्ट्री. Specific चाहिए, specific. Food industry, I agree, but what opened? 2 most important things that opened in the food industry. Government ने open किया. पहला दारू. दूसरा मेडिसिन. Second, medicines तो मिल ही रहे थे. Second, pizzas and burgers. होटल है. The sale of things like pizzas and burgers, they grew so many manifold the minute it was announced कि shops open होंगे. क्यों? हमको अच्छा खाना नहीं मिलता घर पे? मिलता तो है, ठीक है, but it is about we thinking we can eat anything, do anything, and we will not fall sick. That is the main core. हम आज as parents, okay, हमारे बच्चे जब छोटे थे, खैर मेरी लड़की तो आज she'll be 22,
ओके, बट व्हेन शी वाज स्मॉल, टाइनी, वो जिद होती थी, नहीं मुझे आज पोटैटो चिप्स ही चाहिए, मुझे मैकडोनल्ड के फ्रेंच फ्राइज ही चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाना, मुझे पिज्जा ही चाहिए, आज पार्टी है, we are going out, so I will eat pizza. When do we think about the soups and salads? Nothing. That is not, that never was our culture. And because of that, हम 80% लोग इस चीजों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके, चलो एक बार खा लिया, चलो एक बार ले लिया, चलो एक बार बाहर जाते हैं साल में, ठीक है, बट वो एक बार करके इतना ज्यादा होता है कि वी आर एक्चुअली वेटिंग टू फॉल इनटू दैट 20% कैटेगरी कि किस दिन कब बीमारी आए और हमें पकड़ ले। एक बार बीमारी आती है तो क्या होता है, वी हैव सम काइंड ऑफ सिम्टम। आमतौर पे अगेन मोस्ट ऑफ अस इग्नोर दीज बॉडी सिग्नल्स एंड इसकी वजह से वी हैव अलार्मिंग रेट्स ऑफ साइलेंट किलर्स। कौन बताएगा, एक दो नाम बताओ, साइलेंट किलर्स कौन सी बीमारियों को कहते हैं? डायबिटीज यस, और ओबेसिटी, निशा जी क्या बोले? ब्लड प्रेशर, यस, ओबेसिटी एंड बढ़िया, these are the major three, okay? Diabetes, cardiac ailments and obesity. So बहुत बार हम ये सोचते हैं ठीक है मेरे फैमिली में डायबिटीज है पर मुझे नहीं है, ठीक है, बट वी नेवर थिंक कि मुझे कभी तो भी जाके एक चेक करना चाहिए कि कहीं मुझे हुआ तो नहीं। बट वी गो टू प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और उसमें एक दिन में हम ये जान लेते हैं कि अगले एक साल तक आई एम नॉट गोइंग टू फॉल सिक बिकॉज टुडे my reports are normal. It is party time. So you go out in the evening and again have whatever is your most favorite food. Kuch nahi, I know Delhiites, naan. You all have the most healthy food, paneer. But it is such a common thing कि छोड़ यार, पनीर तो बनता ही है घर पे, हर चीज में होता ही है, let's have naan, let's have roti. That is what? मैदा? Nutritive value? Zero. And then उसके साथ बटर रोटी, बटर नान, बटर, इवन चपाती, बटर चपाती. How many of us? I love butter, ठीक है? Whatever the health reason, we still are going by our taste buds. And then कभी कभी चलो शुगर है ना, हाँ मुझे पता है मुझे शुगर है, ठीक है, अभी एक 2-4 बटर रोटी खा ली, शाम को खाना कम खा लेंगे। हम अपने खुद के डॉक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी रिस्की कि हम किस वक्त कब, वी हैव सो मेनी सेलिब्रिटीज डाइंग दीज डेज। वॉक ले रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ राइट, बट सडनली दे हैड अ कार्डियक अरेस्ट, they were at work, they were traveling, suddenly they had a stroke, something or the other happening, and when we fall sick what do? We go to doctor, diagnose करेगा, अच्छा डॉक्टर होगा, नेबरहुड वाला जो बचपन से जानता है, वो बोलेगा बेटे ये 2 दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, फिर वो हम 2 दवाई लेके वी आर वेरी हैप्पी, मेरे डॉक्टर ने दिया, हमने खा ली, टाइम से अच्छे हो गए, ऐसा हम सोचते हैं। बट देन किसी न किसी दिन because of this curative approach या because of this relaxed attitude, हम सभी लेते हैं, कितने लोग लेते हैं, सर दर्द हुआ चलो जाके एक क्रोसिन पेन रिलीफ, आई एम माई बेस्ट डॉक्टर, नहीं तो मुझे स्टमक पेन हो रहा है काफी दिन से, लेट मी सर्च ऑन गूगल एंड फाइंड आउट ये क्यों हो सकता है, ठीक है, we will still prefer we are our own doctors, and that is where we are very careless, and any disease which sets in, if we don't detect early, that is what is going to really explode someday. ऐसा नहीं है कि बीमारियों का इलाज नहीं है, बट बीमारियां इतनी है कि एक डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेटर्निटी कम पड़ रहा है, दवाइयां दिन ब दिन हायर बनते जा रही है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर अनेबल टू रियली अंडरस्टैंड कि कल क्या होगा। एंड यस, द मोस्ट बेस्ट पार्ट इज मेरे पास 25 लाख का इंश्योरेंस है, मैं बीमार पड़ूंगी मेरी जेब से 1 पैसा नहीं जाएगा, इट्स कैशलेस, ओके। सो ओवर डिपेंडेंस ऑन मनी एंड मेडिकल इंश्योरेंस, और जिसके पास यू नो द कवरेज ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस इन इंडिया इज लेस देन 15%, तो जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है वो बेचारा तो कोरोना जैसे टाइम में, आई डोंट इवन हैव टू मेंशन कितने बिल हुए, कितने फैमिलीज वेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड दैट इज ऑल अपनी खुद की करनी।
सो आज मैं आपको वो टेक्नोलॉजी बताऊंगी जिससे आप अपनी सेहत को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं. वी विल नॉट बी एबल टू ब्लेम इट ऑन मेरे खानदान में ये बीमारी है, ये चलती रहेगी, मुझे होना ही है. आज मैं जो आपको टेक्नोलॉजी बताऊंगी उससे ये पॉसिबल है कि अगर मेरे खानदान में एक बीमारी है, दैट कैन बी रिवर्स्ड, or we can stay away and safe from that bimari by simple things that we do in our life every single day. So instead of planning to become a part of the illness industry, how long will you continue to depend on the healthcare industry? Hospitals कम है, beds नहीं है, doctors कम है, nurses कम है, technicians कम है. Let's get into the very common शब्द जो हमने बचपन से सुने और मरने तक सुनते रहोगे. Prevention is better than cure, because we always go by the urgency versus the हमारा action. Okay, urgency versus emergency. जब एक कहीं दर्द उठा जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब हम दौड़े दौड़े जाएंगे. अरे अब ये बर्दाश्त नहीं होता, ये तो था पेट में पहले से, बट अभी तो छाती में भी दर्द कर रहा है. ठीक है. But with this technology, with understanding your genetics, genetics क्या है? What you receive from your father and mother when you're born, that is simple genetics. That is simple your genes. That is your DNA. So by understanding the DNA, we can make prevention not just better than cure, but of course, affordability wise, it is much cheaper too. Again, अगर मैं बताऊं, I will quickly go over the slide कि हमें एक प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो कोरोना में बना एंड वी ऑल रियलाइज वो नहीं डालना चाहिए. बिकॉज इसके बाद क्या है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जैसे मैंने पूछा, मैं वॉक लेता हूँ रोज, मैं रोज कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूँ, मैं रोज हेल्दी डाइट खाता हूँ. ठीक है. वी थिंक दैट वी आर डूइंग इनफ फॉर प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन. We definitely in corona learned how important physical distancing is. उसके बाद we learned कि हमको अपनी immunity strong बनाना चाहिए. ठीक है. We all learned that. Yes. Then Yes. we went into दादी माँ के नुस्खे, traditional home remedies. That was always there even before the medical system came in. ठीक है. But हम कितना अपने life में अपना रहे थे. Then we stretched the rubber band to the brink. We said vaccines चाहिए, इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता. Vaccines आए, हमने 2 नहीं 3 डोज भी लिए. ठीक है. बट उसके बाद भी you think लोगों को कोरोना नहीं हुआ? What is the efficacy? Again, we are putting pressure on the healthcare industry. कितना करेगा? Someday it has to break. So what is the option? If you simply understand your body, then our body, human body is made of systems. Systems is made of organs. Organs is made of tissues. Tissues is made of cells. तो ये DNA क्या है? Okay? सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम. ये हम सभी लोगों ने बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ा. पढ़ा नहीं पढ़ा? यस, पढ़ा. ओके, इतना समझ में आया. तो वो क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर होता है हमारा DNA. तो हमारे शरीर में कितने सेल्स होते हैं? ऑलमोस्ट 37.2 ट्रिलियन सेल्स. और हर सेल के अंदर कम से कम यू कैन कॉल इट एज 3 GB डेटा. एंड अगर हम 37.2 ट्रिलियन सेल्स लें तो हमारे अंदर इतना सारा टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, नॉन काउंटेबल हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा DNA होता है. और ये क्या करता है? इसकी एक कोड या इसकी हम एक भाषा कहते हैं. उसके सिर्फ 4 ही कैरेक्टर होते हैं. जैसे हमारे ABCD में 26 होते हैं, वैसे DNA के सिर्फ 4 ही कैरेक्टर होते हैं. और ये 4 कैरेक्टर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, आइडियली उनका कॉम्बिनेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बट उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ हमारे शरीर में होता है. एक तो हमें जीन्स मिल गए अपने मम्मी डैडी से, कैरेक्टर्स मिल गए, बीमारियां मिल गई, अच्छाइयां मिल गई, हमारी हाइट, वेट, आंखें, शेप ऑफ हैंड, स्पीड, बॉडी, ओबेसिटी सब मिल गया. ठीक है. बट हमारे रहन सहन, लाइफस्टाइल से इस पर प्रभाव पड़ता है. सिंपल अगर समझो तो कहते हैं माँ के पेट में जब बच्चा होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में उसका सर बनता है, हाथ बनता है, आंखें बनती है, सब पूरा शरीर बनता है. उसके बाद कहते हैं माँ को अच्छा पोषण, पौष्टिक आहार दो, क्योंकि वो जो खाएगी उससे बच्चा बनेगा. राइट? यस. अगर उसको ठीक से सही ढंग से खाना नहीं मिला, पोषण नहीं मिला, तो what will happen? बच्चा एंड जच्चा, both of them
will be unhealthy, right? So you agree food has a big impact. We will learn further how it impacts and what is, I'll give an example. So ये हमारा DNA कितना होता है, जैसे पुराने जमाने के फोन की वायर होती थी, ऐसे एकदम टाइटली गोल 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 गोल. How many of us have seen? आजकल तो हैंड्स फ्री, कॉर्डलेस, ठीक है. तो उस तरह से हमारा डीएनए हमारे शरीर में हमारे क्रोमोसोम के अंदर होता है. और वो क्या होता है कि आप कैसे दिखोगे, गोरे होंगे, काले होंगे, वो कैरेक्टर्स हमें अपने मम्मी डैडी से मिले हैं. और जो हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, और जो जीन्स में होता है वो होता है जीनोटाइप. तो अगर हम इसको स्ट्रेच करें डीएनए को, इट विल गो बिटवीन द मून एंड द अर्थ more than 6,000 times. ये हम सभी के शरीर में है. एंड हम कितने सिमिलर हैं एक दूसरे से, हैं हम लोग सिमिलर हैं, ऐसा लगता है किसी को? हम सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे आंखें, एक जैसे बाल है किसी का? दो लोगों को आपने देखा है बगल में खड़े हैं, मैं और गीता भी खड़ी रहूंगी, हम अलग हैं, राइट? एंड यू नो व्हाट इज द परसेंटेज जो अलग है? इट इज 99.9% हमारा डीएनए इज सेम. सिर्फ एक 0.1% के डिफरेंस की वजह से आप अलग हो. डॉक्टर उषा नायर एंड गीता चोपड़ा एंड शैलेश जी एंड शैलेंद्र चौरसिया जी, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. दिस इज द नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर. तो मैंने कहा डीएनए की एक लाइफ कोड भाषा होती है, उसके सिर्फ 4 कैरेक्टर, इसे हम कहते हैं, आई एम नॉट टेकिंग द फुल फॉर्म्स, A, T, C एंड G. तो A को हमेशा T के साथ कंबाइन रहना चाहिए और C को G के साथ कंबाइन रहना चाहिए. बट हमारे रहन सहन खान पान से इसमें होता है केमिकल लोचा, एंड दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, जिसकी वजह से देन हम अपने शरीर में ट्रिगर करते हैं बीमारियों को. अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट. रिमेंबर आई सेड हमारे खानदान में ये बीमारी है, मुझे होना ही है. अभी नहीं होगा तो 50 साल के बाद तो होगा ही होगा, राइट? वी ऑल बिलीव दैट. सो टुडे फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड कि जो अपने दादा दादी, नाना नानी, डैडी मम्मी, सबका जो लाइफस्टाइल, रहने का तरीका, सब कुछ था, वी फॉलो ऑलमोस्ट द सेम. हमने उसमें कुछ जान के बदलाव नहीं किए. सो बट नेचुरली द सेम थिंग हैज टू कंटिन्यू. आप अच्छाइयां कंटिन्यू करोगे तो बीमारी भी आएगी ना, बट डिपेंडिंग ऑन योर इम्यूनिटी, वो किसी को जल्दी आ जाएगी, किसी को 50 साल में आएगी. और अगर अच्छी सेहत और अच्छा खाना मेंटेन किया तो अगर आप नसीबवान हो तो वो आएगी ही नहीं, बराबर? सो दैट इज व्हाट हैपेंस. देन वी आल्सो टॉक अबाउट, इसको समझने के लिए लेट मी एक्सप्लेन टू यू इम्यूनिटी क्या होता है. कॉमन हमने कोरोना में बहुत सुना, इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी. ठीक है, इम्यूनिटी 3 प्रकार के होते हैं. एक कहते हैं हम बैरियर इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी. ये दोनों हम लेके पैदा होते हैं मम्मी डैडी से. ठीक है, बैरियर इम्यूनिटी माने अपना स्किन ले लो. अपना स्किन इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो ये प्रिवेंट करता है ना किसी भी जीव जंतु को अंदर जाने से. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बैरियर इम्यूनिटी, वो हम लेके पैदा होते हैं. इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? जो हमारे WBCs होते हैं, हमारे कुछ कुछ अलग अलग सेल्स होते हैं ब्लड में, ठीक है, जो हमारे शरीर की, हम कहते हैं ना, फाइटिंग कैपेसिटी, जब बीमारी हो तो WBC काउंट बढ़ जाता है क्योंकि हमारे शरीर के सेल्स उससे लड़ रहे हैं. सो दैट इज इनेट इम्यूनिटी. तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस इज स्किन. सेकेंड लेवल इज जो हमारे अंदर हमारी, हम कह सकते हैं, सहन शक्ति, प्रतिकार शक्ति जो होती है. एंड देन इसके बाद हमने वैक्सीन लेने के बाद क्या किया? बीमारी हुई, हमने उसको सफर किया एंड हमारी एंटीबॉडी बनी, या फिर वैक्सीन लिया और हमारी एंटीबॉडी बनी, और ये एंटीबॉडीज, ये इम्यूनिटी हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगी. दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो हमें बैरियर इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी मिलती है जेनेटिक्स से, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हमें मिलना चाहिए, जैसे अभी कोरोना के टाइम में हम डेवलप कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है. हम कितना कर पाएंगे और कितना हमें उसका फायदा होगा. सो वी डू सिंपल डीएनए टेस्ट. ये डीएनए टेस्ट आजकल नहीं आए हैं, डीएनए टेस्ट पहले से हैं. अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, इन्वेस्टिगेटिव सीरीज देखते हो, डिस्कवरी आईडी देखते हो, तो उसमें forensic DNA होता है, which is not used by me and you. It is used by criminal investigation agencies, government. हमने एनडी तिवारी जी का paternity test की बात की थी. So all this is forensic DNA investigation के लिए. Then comes जो हमारा mainstream healthcare system है, उसमें there is clinical DNA test. ये क्या होता है? अगर किसी को कैंसर हुआ,
उसका ट्रीटमेंट करना है, तो डॉक्टर एक डीएनए टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा। लंग कैंसर जीन 9, जाके टेस्ट करा के आओ, 21 दिन बाद रिपोर्ट आएगा, और 21 दिन में अगर उसका कीमो या रेडिएशन खत्म हो गया तो वो रिपोर्ट भी वही बताएगा जो आपको सामने दिखाई देता है कि ट्रीटमेंट फेल होएगा, पेशेंट को असर नहीं करेगा, और एक्चुअली आप देख चुके हो 21 दिन में कि पेशेंट बेचारा और क्रिटिकल हो गया। So the biggest example is Angelina Jolie. She did this clinical DNA test because उसकी family में cancer था, and she understood she's prone to breast cancer, and she ensured that she got her breast removed. But this is only by prescription. आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो प्रिस्क्राइब करेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। बट मैं आज जिस चीज की बात कर रही हूँ विद द डीएनए एंड गुड हेल्थ एंड फूड एंड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज वेलनेस डीएनए। ये टेस्ट हमें नॉट ओनली क्या न्यूट्रिशन खाना चाहिए, जैसे मैंने कहा, क्या हमारे शरीर को सूट करे, कितना एक्सरसाइज, किस टाइम पे एक्सरसाइज, नॉट लाइक ऋतिक रोशन 6 पैक्स चाहिए, 8 पैक्स चाहिए तो मैं भी जाके जिम में चालू, सुबह भी शाम को भी, ठीक है, बेस्ट ऑफ प्रोटीन खाता हूं। बाद में पता चला कमर ऐसी पकड़ी कि 15-20 दिन हिल ही नहीं पाए बेड से। So what exercise suits you? What time of the day? What is the best food for you? आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या लिमिट करना चाहिए, एंड हमारे लाइफस्टाइल में क्या होता है। लाइफस्टाइल, हु कैन से क्विकली, लाइफस्टाइल माने क्या? खाना छोड़ दो, फिटनेस छोड़ दो, बाकी लाइफस्टाइल बताओ, कौन बताएगा क्या होता है लाइफस्टाइल? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इजी टू, मतलब वो जल्दी से मिल जाए और फटाफट काम पे लग जाए। नहीं, अपना लाइफस्टाइल होता है मैं कितने बजे सोता हूँ, 7-8 घंटे सोता हूँ नहीं होता हूँ, मैं कितना पानी पीता हूँ, मैं कितना सनलाइट में जाता हूँ, ऑल दैट इज लाइफस्टाइल अदर देन व्हाट यू ईट। कोई कुछ कह रहा था। आदर्श रूटीन जो होता है, यस, एक आदर्श रूटीन होना आपका रूटीन, दिनचर्या, ठीक है, अदर देन खाना पीना एंड एक्सरसाइज फिटनेस, दैट इज योर लाइफस्टाइल। कैन आई इन्फॉर्म यू दैट आपके लाइफस्टाइल की वजह से आप आधे से ज्यादा बीमारियां या तो ट्रिगर करते हैं या उनको सप्रेस करते हैं। दैट इज व्हाट साइंस सेज टुडे। डॉक्टर उषा, यस सर, टाइम, yes sir, 5 minutes. Yeah. So today it is possible with this DNA profiling technology कि हम, if you have heard about designer babies, then this was the cover of a Time magazine where it says you can crack your genetic code today. उतना research हुआ है. The whole research began in the year 1990 to 2003, which was called as the Human Genome Project, which happened in the US. And इससे ये पता चला कि आपका फूड कहाँ ट्रिगर करता है, आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं, और वो ट्रिगर सप्रेस करने के लिए आपको क्या खाना पीना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल एंड आपका फिटनेस रेजिम कहाँ ठीक करना चाहिए। सो वी टॉक अबाउट डिजाइनर बेबीज टुडे। वी हैव हर्ड डिजाइनर बेबीज में वी कैन एक्चुअली मॉडिफाई, या बिकॉज वी कैन नो कि उसको पहले से हमें पता है ये बच्चा पैदा होएगा तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा, या उसे डायबिटीज होगा, या उसे पार्किंसंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हम जान सकते हैं। आज ये टेक्नोलॉजी हम वेलनेस के लिए यूज करते हैं। दैट इज हाउ यू कैन नो योर बॉडी एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत कुछ मैं एलैबोरेट कर सकती हूँ अबाउट इम्यूनिटी, व्हाट आई वाज टॉकिंग। सो वी हैव डीएनए जो हमने माँ बाप से प्राप्त किया, then we have our vitamins, nutrition, minerals, our food that we eat. So if you see this chart quickly, हमारा एक इम्यूनिटी जो मैंने 2 प्रकार की कही वो लेके पैदा होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं खर्च होती है, राइट? सो हमें वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या वो मेंटेन करना जरूरी है, फॉर विच मे बी यू टॉक अबाउट इम्यून सिस्टम, विटामिन सी चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, विटामिन ई चाहिए, जिंक चाहिए, ऐसे कई चीजें चाहिए हमारे शरीर को, तभी वो ऑप्टिमम आइडियल इम्यूनिटी बना पाता है। बट आपके शरीर को कितना प्रोपोर्शन में और क्या चाहिए मुझे नहीं पता, मेरे शरीर को कितना चाहिए वो भी मुझे नहीं पता। बट टुडे इफ यू कैन डू दिस जीन प्रोफाइलिंग of yours for wellness, you can know your personality, you can know your skin, you can know your organs, you can know your diseases, you can know whether you or your children can get addictions in future, whether you can get any kind of बीमारी from allergies to cancers, और उसके triggers क्या होते हैं।
आपको मेल फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंसेस डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, ऐसे 210 जीन्स के टेस्ट होते हैं. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू से गुड बाय टू दैट वन साइज फिट ऑल ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट को दूर रखो, बीमारी को आने से दूर रखो, अंडरस्टैंड योर जीन्स एंड अपनी सेहत को अपनी मुट्ठी में रखिए. अगर आपको पता है मुझे विटामिन बी लाइफ टाइम तक कम है, मेरे जीन्स में वो आया है, तो हम जब साल में एक बार विटामिन B12 का टेस्ट करते हैं, डॉक्टर कहते हैं सप्लीमेंट्स लो 3 महीना फिर भूल जाओ. दैट इफ यू नो मुझे लाइफ टाइम टेंडेंसी है, तो यू विल मॉडिफाई योर डाइट एंड ईट विटामिन बी रिच फूड्स. भगवान ने हमें सब कुछ दिया. इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन आ जाए, बट देर आर फूड्स, fruits, vegetables, lot of other things. Vitamin B12 for non-vegetarians deficiency होना बहुत मुश्किल है, because that is a big source from meat, from non-veg. Similarly, there are foods. So understand your genes. Understand आप जैन हो, आप vegetarian हो, आप जो भी हो, what is it that is required by your body, so that आप अपने शरीर को, naturopathy कहता है, मैक्सिमम आप उसको पोषण दो एंड वो ऑटोमेटिकली अपने आप को क्योर कर पाएगा. So any questions you have for me? डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जो सर थोड़ा सा लाउडली. मैं कहा थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पे. हाँ. कि जो हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, क्या उसी तरह से ये जेनेटिक प्रोफाइलिंग टेस्ट होता है? Actually, कैसे कराया जा सकता है? yes, I will tell you. हाँ. It is a very simple test. इसको हम केवल थूक से 2 cc थूक, because it is easy to collect. Even एक दिन के बच्चे का थूक होता है, and once you're born, your genes are there with you. तो it is not like preventive health checkup कि हमको खून देना है, यूरिन देना है, because DNA genes can be segregated from so many things. Again, I said criminal investigations में हमको पता है, hair से होता है, body fluid से होता है, blood से होता है, skin scraping से होता है. So what we promote is simple saliva, क्योंकि हम कहीं भी कभी भी थूक सकते हैं. So it is very simple test, and yes, इसमें sample lab में जाने के बाद it takes at least 21 working days. So 21 to 30 days you have to wait for the report to come, because this is very, very high level second generation of sequencing technology. Hope that answers your question, Shailendra ji. How expensive is this in terms, when compared to a preventive health checkup? Preventive health checkup is a subscription model. It comes every year, okay, and it depends on your doctor how much you want to spend. Whether you spent 2,000 last year, that became 5,000 this year, or it is going to be 20,000 next year. So I cannot put a benchmark rate on it. अगर मैं 50 साल जीता हूँ और एक 10,000 एवरेज पकड़ता हूँ, so that is the kind of expense. But with this kind of technology, simple is, अगर आप अगले 20 साल हेल्दी जीना चाहते हो, तो I will request you to spend approximately 4-4.25 रुपए on a daily basis. And अगर आप 10 साल जीना चाहते हो, तो उसको डबल कर दो, 8-8.5 रुपए दिन के, to keep healthy and know about this and live a good life. Yes, sir. Thank you. Well, friends, thank you so much for a very patient listening. जिन किसी को मेरा नंबर चाहिए था, this is my number, this is my email. You can quickly take a screenshot, and all of you present here today, I offer you a 30 minutes free pre-consultation session to understand yourself and understand how this can help you better. Thank you so much, friends. Have a lovely day. I know I took more than 10 minutes, but because it was a small group, I really enjoyed explaining to each one of you how it can make a difference in your health. So this technology can help you reverse your diseases. This technology can help you stay healthy. Whatever you need, अपनी सेहत अपनी मुट्ठी में. मैम कितना कॉस्ट आता है इसका? डीएनए टेस्ट कराने का कॉस्ट कितना आता है? It is a 1-year program. ठीक है? So we will discuss one-on-one. अच्छा. It's not a test. We don't offer tests. खाली टेस्ट करके आपको क्या मिलेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा. So it's not a test. It's a 1-year hand holding program. Okay. I told you ना, 20 साल हेल्दी रहना है तो 4.25 रुपए अप्रोक्सीमेट कॉस्ट गिन लो. Thank you, friends. Okay. Great.